सवाल आ गया, practicing instructional and transformational leadership challenges faced by female principals of public colleges in Lahore. इसको introduction जो है इसमें Let me start with research objectives, please. Research objectives, okay sir. हाँ जी, वहाँ से start कर लें. Okay. सर ठीक है. Research objectives जो है उनमें है to explore the challenges faced by female principals related to instructional leadership. यानी इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप से रिलेटेड जो आगे चलिए. नेक्स्ट वन प्लीज. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव. सेकंड, टू एक्सप्लोर द चैलेंजेस फेस्ड बाय फीमेल प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. नंबर 3, टू एक्सप्लोर स्पेसिफिक चैलेंजेस फेस्ड बाय फीमेल प्रिंसिपल्स फॉर बीइंग फीमेल. सर आगे करूं? जी प्लीज करें. ऑफ कोर्स कंटिन्यू. ओके. The research question फिर आ जाएंगे. Research question है what are the challenges faced by female principals related to instructional leadership? What are the challenges faced by female principals related to transformational leadership? Number 3, what are the specific challenges faced by female principals for being female? Okay, next please. Research design जो है वो my research design is qualitative and my research method is qualitative and research design is case study. Research sites and sampling techniques and participants of research जो है उसमें my research sites were female public colleges in Lahore. My sample was female principals of public colleges. I used purposive sampling technique for the selection of 10 female principals of public colleges in Lahore. My sample was... Okay, next please. Next slide. Okay, sir. Data collection method के हवाले से उसमें है data was collected through semi-structured interviews. An interview guide was prepared and it consisted of 24 questions. Questions were related with introduction and useful information of principal job. Sometimes probing was necessary and probing helped me to reach the inner self of the principals. Data collection method. Data was collected through data analysis method. I analyzed data through thematic method. I conducted interviews and many themes emerged from data. After transcription of interviews, coding was done. Categories and subcategories were derived after clustering similar data. All the themes and patterns were analyzed and useless themes were split out. And administration related challenges emerged. Conclusion and results. According to ऐसे ही previous slide पे जाएं थोड़ा सा. Sorry. Sir, different academic and okay. Continue please. ठीक है sir. Next. Conclusion and results. According to the views of principals, participants for many challenges during performing their duties in public colleges in Lahore. Number 2, principals face many challenges while performing their instructional leadership role. Principals face financial challenges in female colleges. They have insufficient financial resources according to the needs and requirements of the colleges. Principals face problems in curriculum and teaching methodology. They try to solve all issues of parents, students, staff members, community, and economical needs. Next, an efficient principal use available resources in an effective way. Principals try to create a positive teaching and learning environment in institutions. Assess and evaluate the performance of teachers and all important elements of the educational process. Next point, according to the role of transformational leadership, principals face many challenges. All participants of research, female principals, narrated this reality that a transformational leader tries to boost motivation, morale, and performance. Principals need to create a shared vision and a good environment in the institution. As a transformational leader, principals provide equal chances and professional development and progress for all employees and members of an organizational team. Next point is, our transformational leader tries to create a productive work culture in an educational institution. Principals listen to all and make decisions in the light of opinion of all members of the institution. If principal has a positive approach, then she can solve all type of problems and can face challenges in a positive way. Transformational leader prepare a team for self-management.
Female principals face many challenges as a female leader. They have to perform double duties. They have long working hours as well as they have to face domestic issues. When they reach late at home, then they face appointing behavior of family members. Next point, in a nutshell, the job requirements of principals in 21st century have become more complex, and college principals are facing many challenges, especially female principals. Recommendations for practice. सर करूँ ये? जी continue please. चलिए ठीक है सर. This study provides the following recommendations. The findings of the study suggest that availability of sufficient financial resources is a challenge that creates obstacles in the effective performing of the transformational and instructional leadership related duties of a principal. Therefore, it is recommended that availability of sufficient financial resources according to the requirement of institutions should be ensured by the government. Number two, the findings of the study suggest that the interviewed principals are facing some challenges related to their role in college. Therefore, it is necessary to organize seminars and to conduct training programs for the professional development of principals so that they effectively manage stress related to the challenges we are facing being female. In addition, meeting sessions with past experienced principals can be an effective approach for the mentorship of current working principals. It is important that principals have sound psychological literacy to establish good human relationships between principals and all elements of the educational process. In addition to the involvement of aptitude tests in selection criteria for a principal, a psychological literacy test can be helpful in the choice of a good principal. Suggestions for future research. Number one, the conclusions of present research cannot be generalized because of small sample and subjective nature of the qualitative research. Therefore, it is suggested to conduct a survey on challenges faced by principals of public colleges in order to generalize the results. Number two, a comparative study can be conducted on the challenges and problems of female principals of rural and urban areas. Number three, future research can be conducted on performance evaluation of public and private sector principals. Thank you, sir. अच्छा, उसमें मुझे दो तीन चीजें सिर्फ आप सबसे पहले बता दें. First of all, I'm really, आप जरा research objectives पे आएं, please. Research objectives, okay, sir. जी sir. हाँ जी. To explore the challenges faced by female principals relating to instructional leadership. ठीक है. अच्छा, क्लियर. ये आपने थोड़ा सा ना इसके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अकलमंदी से रिफ्रेश किए हैं, नहीं तो आप और घर में डॉक्टर साहब ने आपको गाइड किया होगा, नहीं तो यहीं पे आपने फंस जाना था. बिल्कुल. अगर आपने इंस्ट्रक्टर लीडर लिखा होता ना, then you would have been caught over here. ठीक है. हाँ जी, नहीं साथ तो साथ रहे हैं उनके साथ. तो अच्छा, इसमें इसका मतलब है कि आपने एक क्वेश्चनर ऐसे बनाए हैं जिसमें आपने इंस्ट्रक्टर के हवाले से भी इंफॉर्मेशन उनसे पूछी होगी, ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से भी पूछी होगी और स्पेसिफिकली फीमेल्स के हवाले से भी पूछी होगी. अच्छा, इसमें यहाँ पे भी और आपकी थीसिस में भी जो थी ना, छोटे छोटे बहुत ज्यादा इश्यूज थे. अब आप लास्ट स्लाइड पे आए इसकी जरा. लास्ट स्लाइड पे आए. मैं थोड़ा सा दो तीन पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट करना चाहता हूँ. नहीं डॉक्टर साहब ज़रूर करें ताकि इनकी फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बेहतर हो जाए. ज़रूर रेस करें जो भी है. हाँ जी सर. कहाँ पे आप बता दीजिए, स्लाइड बता दीजिए. अच्छा, लास्ट में ये वाला जो है देखिए कंपैरेटिव स्टडी, उस वक्त मेरे ज़हन में पॉइंट्स थे, अब थोड़े से वो. अच्छा, बहुत सी आपने जो फर्दर रिसर्च है उसको इट सीम्स उसका करंट रिसर्च के साथ रिलेशन नहीं है कोई. जैसे आपका लास्ट पॉइंट है, फ्यूचर रिसर्च कैन बी कंडक्टेड ऑन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर प्रिंसिपल्स. इसका आपकी करंट रिसर्च से क्या रिलेशन? सर देखिए, कंपैरेटिव स्टडी जो है ये परफॉर्मेंस को भी जो मैं ले रही हूँ, मैं प्रिंसिपल्स की परफॉर्मेंस को ले रही हूँ और एरिया वाइज देखिए रूरल एंड. अगर आप इसे यूं करें ना
कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ फीमेल टीचर्स, तो शायद इसका रिलेशन बन जाए। फीमेल अभी जो आप बात कर रही हैं इसका नहीं बन रहा, ठीक है? ठीक है, सर मैं इसके फीमेल ऐड कर दें। मैंने ये बात आपको आपके पास वो जो मैंने आपको कमेंट्स भेजे थे आपने उन्हें पढ़ा था? जी सर, मैंने वो सारे जो आपने जिस तरह भी बताया है खोल के पढ़ो ना। हाँ जी बिल्कुल पढ़ा है खोल के, और उसको किया भी है काफी हद तक। ये आपका आर्गुमेंट नहीं होता कि स्मॉल सैंपल की वजह से चीजों को हम जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है ना? इसीलिए कि बेसिकली जनरलाइज आप यूं नहीं कर सकते कि आपकी नेचर ऑफ रिसर्च जो है वो क्वालिटेटिव है, और क्वालिटेटिव को तो जनरलाइज किया ही नहीं जा सकता, ठीक है ना? सब्जेक्टिव नेचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च तो आप कर दें, लेकिन स्मॉल सैंपल को आप नहीं रखें, ठीक है? अच्छा, अगेन इससे पिछली साल पे आ जाए जरा, क्योंकि मेरे सेंस से स्पेसिफिक वो पॉइंट्स निकल गए हैं। इट हैज बीन अ गैप ऑफ 5 to 6 मिनट्स। प्रीवियस स्लाइड पे है ना, प्लीज क्विकली, टाइम नहीं है हमारे पास। प्रीवियस ठीक है सर। रिकमेंडेशंस जो है जी सर, यही है ना रिकमेंडेशंस आप कह रहे हैं? जी। ठीक है, पॉइंट्स आप बता दें। और यास्मीन सब्र कर जाएं। जी सर, मैं बिल्कुल सब्र में पेशेंस के साथ में। प्रीवियस प्रीवियस जी ठीक है सर। ये थोड़ा आगे जाऊं कैसे कहेंगे आप? जैसे भी प्रीवियस पे आए, प्रीवियस क्योंकि इसलिए कि वो सारे के सारे पॉइंट्स मेरे सीन से क्वाइट फ्रैंकली जी 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 अब देख लें निकल आप। गई हैं। नाउ यू हैव टू काइंड ऑफ रीड देम। ठीक है सर। अच्छा, मुझे बात तो पता है, आपने इसमें जो डेटा एनालिसिस है वो किस तरह से किया था? सर मैंने थीमेटिक एनालिसिस जो है वो यूज किया है। वो स्लाइड 10 जरा एक मिनट के लिए, स्लाइड 10 में एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को कहना चाहता हूं। आई एम हैप्पी दैट अदर्स आर आल्सो लिसनिंग एक्चुअली। जी जी सर। जो एक छोटा सा प्रॉब्लम, अगेन समथिंग दैट आई वाज ऑलवेज टोल्ड बाय माय टीचर्स एक्चुअली। देखिए, दो चीजें होती हैं। एक आप उसका थियोरेटिकल जो उसका बताती हैं कि आप डेटा एनालिसिस आपने इस अंदाज में किया है, इस बंदे ने मॉडल दिया था, इस बंदे ने उसका मेथड बताया था, इस बंदे ने पैटर्न बताया था, उसने ये चीजें बताई थी जिसको आपने फॉलो किया है। बट what is really important, क्योंकि often what I have seen quite frankly in most of the thesis, और मैं एक जनरलाइज किस्म की बात कर रहा हूँ, एक तो आप लोगों के थीसिस में जो इंफॉर्मेशन है that was more like text book information, ठीक है ना? क्रेसवेल ने कहा कि ये करनी है, इसने कहा कि ये करनी है, पैटर्न ने कहा कि ये करनी है, कोडिंग करनी है। इसके अंदर लिखे प्रैक्टिकली आपने वो काम कैसे किया, आपने उसको अगर MS वर्ड के थ्रू किया तो आपने कैसे किया? आपने पहले डिफरेंट जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपने डिफरेंट कलर्स में हाईलाइट की, फिर आपने उनको डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर रखा। इस तरह से यू नीड टू टेल प्रैक्टिकली हाउ यू डिड योर वर्क। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई सी इज दैट काइंड ऑफ टेक्स्ट बुक इंफॉर्मेशन रादर देन लिंकिंग इट विद हाउ यू डिड इट, ठीक है? पहला तो पॉइंट ये है, ठीक है ना? इसको नॉट ओनली यू बट द अदर्स शुड आल्सो। दूसरा ये है कि डिस्कशन के ऊपर आप लोगों का एम्फेसिस हैज नॉट बीन अ लॉट। डिस्कशन इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरेचर रिव्यू एंड योर फाइंडिंग्स। आप अपनी फाइंडिंग्स को लिटरेचर की रोशनी में यू पेन देम डाउन दैट वेदर योर फाइंडिंग्स support what the literature had been saying or it contradicts, it tells you something new and different, and that is where all the importance or significance of your research is. Otherwise what I see in most of the cases it is kind of a कि आपके लिटरेचर रिव्यू उधर पड़ा हुआ है, आपने फाइंडिंग्स के ऊपर बहुत बड़ा चंक इधर डाल दिया है, बट यू हैव नॉट कंबाइंड देम विद रैशनल एंड लॉजिक एनीवेयर, ठीक है ना? एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट अ साइंटिफिक स्टडी। ये प्रीवियस रिसर्च ने ये बात की है, मेरी फाइंडिंग्स ये बात कह रही है, ठीक है ना? उसको इस तरह से रिइंफोर्स कर रही है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, वगैरह वगैरह। दैट इज समथिंग दैट हैड बीन मिसिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अच्छा, उसमें जो आपको कमेंट्स दिए थे, आई थिंक डॉक्टर साहब दिस इज द लास्ट स्टूडेंट। जी जी लास्ट है, बिल्कुल
लास्ट है। चलिए फिर वो जनरलाइज किस्म की कुछ बातें भी हम करते हैं। अच्छा, टॉपिक वाली पॉइंट तो मैं यहाँ से बिल्कुल ही अब डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि आपका टॉपिक जो है वो चेंज हो गया है। अच्छा, आपका जो थियरेटिकल फ्रेमवर्क था उसको मैंने कहा था कि आपने दोबारा देखना है क्योंकि उसका टॉपिक के साथ या आपकी रिसर्च के साथ रिलेशन नहीं था। आई डू नॉट नो हाउ मच चेंजेस हैव यू मेड इन दैट एक्चुअली। सर उसमें मैंने चेंज किया जब टॉपिक चेंज हुआ, टॉपिक जो भी चेंज किया है इसी के अकॉर्डिंग ताकि फ्रेमवर्क और टॉपिक जो है वो मैच करें, उनमें कोऑर्डिनेशन नजर आए। आपकी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो पूरा टेबल बना के उसके अकॉर्डिंग जो है वो सारे चेंजेस किए हैं, उनको थीसिस में हाईलाइट भी किया है। ठीक। अच्छा, उसके बाद लैंग्वेज के ऊपर भी आपके काफी ज्यादा मेजर इश्यूज थे। अच्छा, एक और चीज मैंने इसमें देखी थी और मैं उसको भी हाईलाइट देखें, क्वालिटेटिव रिसर्च इज नॉट अबाउट नंबर्स, but it does not mean that we make such a generalized statement that most of the participants said, most of the, देखिए आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, आपने उनको कोडिंग की हुई है, आप कह सकती हैं 7 out of 10 पार्टिसिपेंट्स आगे ब्रैकेट में उनके कोड देके एग्री टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू और मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट वगैरह वगैरह। बट व्हाट आई सॉ एक्चुअली इन योर थीसिस एंड सम ऑफ द अदर थीसिस एज वेल इज दैट मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, नोबडी कम्स टू नो, इसलिए कि जहाँ पे प्रीवियसली आपने पार्टिसिपेंट इंफॉर्मेशन लिखी है, अगर यहाँ पे उनके ओपिनियन के साथ आप उनका कोड लिखती हैं तो रीडर उसको डायरेक्टली लिंक कर सकता है उनके डेमोग्राफिक बैकग्राउंड के साथ और उससे सामने पिक्चर ज्यादा क्लियर होगी। अगर आप मोस्ट और सम ये इस किस्म की वेग किस्म की जनरलाइज स्टेटमेंट्स लिखती हैं तो उस सूरत में चीजें क्लियर नहीं होती हैं। एक्चुअली दिस क्वेश्चन में आल्सो अराइज इन द माइंड, इस बंदे या बंदी ने रिसर्च की भी है या एमए बैठ इसने 4 स्टेटमेंट्स लिख के इसे जमा करवा दी है। सो दिस इज साइंटिफिक रिसर्च, ट्राई टू बी मोर स्पेसिफिक, ठीक है, ट्राई टू बी मोर स्पेसिफिक एंड टेल हु सेड दिस वन, ताकि हम उसके डेमोग्राफिक के साथ अगर आपने रिलेट नहीं भी किया तो रीडर उसको शायद किसी हद तक कर सके। इस हवाले से डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा डिस्कस कहूँगा क्योंकि स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, चले उन्हें भी हेल्प मिल जाएगी। ये जो डिबेट है ना, ये एक्चुअली क्वालिटेटिव रिसर्च के हवाले से अक्सर रहती है और इसमें 2 कैंप्स हैं। एक वो जो आप कह रहे हैं जिसे कहते हैं क्वांटिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव डाटा, ये आप एक्चुअली क्वालिटेटिव डाटा को क्वांटिफाई करने के लिए कह रहे हैं, जो कि एक कैंप जो है क्वालिटेटिव रिसर्चर्स का वो करता भी है। लेकिन ये जो मोस्ट सम और फ्यू का जो है ये एक कैंप है रिसर्चर्स का जिसको लीड करता है, आप कह लें कि पैटर्न, माइकल पैटर्न जो है अथॉरिटी है क्वालिटेटिव रिसर्च में। बेसिकली पैटर्न को ही फॉलो करता हूं, जी, मैं उसी की बुक को फॉलो करता हूं, बाय नॉट कैसल को नहीं करता हूं। तो पैटर्न जो है वो क्वांटिफिकेशन ऑफ डाटा के खिलाफ है, वो मोस्ट सम और फ्यू के। बहरहाल दोनों तरीके ठीक है, मैं जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग, लेकिन अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। से बात कर रहे थे, उनका ये ओपिनियन था, देखिए जब हम क्वांटिफिकेशन की बात करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि जी 5 out of 7 अगर आपने प्योरली उसको नंबर्स की फॉर्म में इवेंचुअली ले लिया है और उस तरह से डिस्क्राइब कर रही है, ये है कि आप कहीं पे बता रही हैं कि इस पार्टिसिपेंट ने ये बात की है तो साथ में अगर आप पार्टिसिपेंट का कोड दे देती है जी, वो तो उस सूरत में उसके लिए तो एग्री करता हूँ मैं हर जगह पे। उसके डेमोग्राफिक के हवाले से बात करूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हम कोटेशंस जितनी भी हैं जब वो एज इट इज़ जब प्रेजेंट करते हैं कोटेशंस, यानी जो उनके व्यूज़ हैं एज इट इज़ जब प्रेजेंट करते हैं तो उसमें लाजमी हम जो है उन्हीं उस पार्टिसिपेंट का कोड जो हमने उसको अलॉट किया होता है, जैसे पार्टिसिपेंट 1, पार्टिसिपेंट 2 या पार्टिसिपेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी से लिया है तो प्राइवेट 1, इस तरह से वो कोड दे दिया जाता है। बहरहाल इंटरेस्टिंग डिबेट है डॉक्टर साहब, और मज़ा आया आपके साथ